السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں فائلم ایکائنوڈرمیٹا کی کلاس ایسٹیرائڈیا، جس میں ہمارے پاس آتی ہیں سی اسٹارس۔ تو سب سے پہلے اس کا جنرل کریکٹرسٹکس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس آتی ہیں تقریباً 1500 اسپیشیز، اور زیادہ تر ہمیں یہ ہارڈ سبسٹریٹس کے اوپر دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن یہ سینڈی یا مڈی میرین انوائرمنٹ میں بھی رہ سکتی ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس ہوتی ہیں برائٹلی کلرڈ، اور اورنج، ریڈ یا گرے تک ان کا کلر جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اب ہمارے پاس ایک سی اسٹار ہے ایسٹریاس، جو کہ اورنج ان کلر ہے، اور اس کو ہم یوز کرتے ہیں انٹروڈکٹری زوولوجی لیبس کے اندر۔ اب سی اسٹار میں کیا ہوتا ہے، 5 آرمز ہے ہمارے پاس، یعنی یہ ہمارے پاس ہے 5 آرم سی اسٹار کی، جو کہ سینٹرل ڈسک سے جو ہے وہ نکل رہی ہیں، اور سینٹرل ڈسک کے مڈل میں جو ہے وہ ماؤتھ یا پھر اورل اوپننگ جو ہے وہ پریزنٹ ہے۔ اب یہ ہم جو ہے نا، یہ اسٹرکچر ہم یہ ڈاؤن ورڈ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم سی اسٹار کو ویسے پڑا ہوا دیکھیں گے تو ایبورل ویو ہمیں نظر آئے گا اوپر سے۔ تو جو ماؤتھ ہے وہ ڈاؤن ورڈ لوکیٹڈ ہوتا ہے، اورینٹڈ ہوتا ہے، اور موویبل اور فکسڈ سپائنز جو ہیں وہ اس کو سراؤنڈ کرتی ہیں، اور آف کورس ان کو پھر ہم اورل سپائنز بولیں گے۔ اسی طرح ایبورل سرفیس کے اوپر بھی سپائنز جو ہیں وہ پریزنٹ ہوتی ہیں، جو کہ موویبل یا پھر فکسڈ یا جس کو ہم آرٹیکولیٹڈ بولتے ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے سارے اسکیلیٹن کے اوپر ہی تقریباً سپائنز جو ہیں وہ پریزنٹ ہوتی ہیں، جو کہ ہمیں اسکیلیٹن کو ایک رف سا ویو دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ باڈی وال کی یہاں پہ فولڈز ہیں، جن کو ہم بولتے ہیں ڈرمر برینکائی، جو کہ آف کورس فنکشن کریں گی پھر گیس ایکسچینج کے اندر۔ اس کے علاوہ ایک اور اسٹرکچر ہے ہمارے پاس پیڈی سیلری، جو کہ ایبورل سرفیس کے اوپر پریزنٹ ہے، اور آف کورس جس کا کام جو ہے وہ کلیننگ ہے، یعنی کہ باڈی سرفیس کو، اسٹار فش کی باڈی سرفیس کو ڈیبریز سے کلین کرنا پیڈی سیلری کا کام ہے۔ یہاں پہ اس کو ہم مزید ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ہے سی اسٹار، تو ہم نے اس کے آرم کا جو ہے وہ کراس سیکشن اس طرح سے لیا، تو جہاں سے ہمیں جو اسٹرکچر نظر آئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ تو جیسے ہم ڈرمر برینکائی کو دیکھ چکے ہیں کہ باڈی وال کی فولڈز ہے، جن کا کام جو ہے وہ گیس ایکسچینج کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ پیڈی سیلری جو ہے وہ ایبورل سرفیس کے اوپر پریزنٹ ہے، جن کا کام جو ہے وہ باڈی سرفیس کو کلین کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اوزیکلز کی ایک سیریز بھی پریزنٹ ہوتی ہے ہر آرم کے اندر، جو کہ فل آرم کی لینتھ تک جو ہے وہ رن کرتی ہے، اور اس کو ہم نام دیتے ہیں ایمبولیکرل گروو کا۔ جیسے کہ یہاں پہ اوزیکلز جو ہے وہ ایک سیریز لائک اسٹرکچر بنائیں گے اور گروو لائک لک دیں گے۔ جیسے یہ تو ہم کراس سیکشن کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں یہاں پہ کلیئر ہو رہا۔ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ہے سی اسٹار کی آرم، تو اس کے اندر اس طرح سے جو ہے وہ اوزیکلز مل کے ایک گروو لائک اسٹرکچر بنائیں گے۔ اور اب اس گروو کے اندر کیا ہے جی، اس گروو کے اندر جو ہے وہ ریڈیل نروز بھی پریزنٹ ہے، اور اس کے علاوہ واٹر واسکولر سسٹم کی ریڈیل کینال بھی اسی گروو کے اندر ہی پریزنٹ ہوتی ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں اس کی لوکوموشن۔ تو جو ٹیوب فیڈ ہیں سی اسٹار کے، آف کورس وہی اسٹیپنگ موشن میں جو ہے وہ موو کریں گے، تو اس طرح جو ہے سی اسٹار جو ہے وہ موو کر جائے۔ اگر آف کورس ٹیوب فیڈ کی ایکٹیویٹی کو ریگولیٹ کون کرے گا، ریڈیل نروز جو ہے وہ ٹیوب فیڈ کی ایکٹیویٹی کو ریگولیٹ کریں گی۔ اب ٹیوب فیڈ دیکھیں کیسے موو کریں گے۔ سب سے پہلے تو ان میں ایک سائیکل ہوتا ہے، ایکسٹینڈ کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ اٹیچ کریں گے کسی بھی سبسٹریٹ سے۔ نیکسٹ انہوں نے موو کرنے ہیں، کانٹریکٹ کریں گے، کانٹریکٹ کرنے سے تھوڑا سا آگے وہ موو کریں گے، پھر سے ایکسٹینڈ کریں گے، اٹیچ ہوں گے، اور نیکسٹ جو ہے وہ کانٹریکٹ کر کے اس طرح جو ہے وہ نیکسٹ موو کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ یونیسن میں موو نہیں کرتے۔ یونیسن مطلب ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے ایک ہی ٹائم میں ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اور ایک ہی ٹائم میں اٹیچ ہو رہے ہیں، بلکہ ہر جو ٹیوب فیڈ ہے وہ تھوڑا سا دوسرے جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائم میں موو کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹیوب فیڈ کے پاس جو ہے وہ سکشن ڈسک جو ہے وہ پریزنٹ ہوتی ہے، تو سکشن ڈسک کا آف کورس کام کیا ہوگا، اگر اسٹرانگ ویو ایکشن ہے تو پھر بھی جو سکشن ڈسک ہے وہ سی اسٹار کو اپنا بیلنس مینٹین کرنے میں کافی زیادہ اس کی ہیلپ کرے گی۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ان کے مینٹیننس فنکشنز کو۔ تو مینٹیننس فنکشن میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈائجسٹیو سسٹم کو۔ اب سی اسٹار نے فیڈ کرنا ہے ہمارے پاس بائیوالز پہ، کرسٹیشنز پہ، پولیکیٹس پہ، کورلز، ڈیٹیوٹس مطلب جو ڈیکمپوزنگ آرگینک میٹر پڑا ہوا اس پہ، اور کافی زیادہ ورائٹی آف میٹیریل پہ یہ فیڈ کر سکتی ہیں۔ اب ان کا جو ڈائجسٹیو سسٹم ہوتا ہے وہ کنسسٹ ہوتا ہے ماؤتھ پہ، جو کہ ہم دیکھ لیا اورل سائڈ پہ جو ہے وہ سینٹرل ڈسک کے مڈل میں جو ہے وہ ماؤتھ پریزنٹ ہوتا ہے۔ یہ ہم ایبورل ویو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سی اسٹار کا، تو اورل سائڈ پہ ماؤتھ پریزنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ماؤتھ سے آگے آتی ہے چھوٹی سی شارٹ ایسوفیگس ہے۔ اس کے علاوہ اسٹمک کے 2 پارٹس ہیں، پہلا ہمارے پاس آتا ہے لارج کارڈیک اسٹمک، اور دوسرا سیکنڈ پورشن ہے اسمال پائلورک اسٹمک۔ اس کے بعد اسٹرکچر آتے ہیں پائلورک سیکا، جو کہ ہر آرم میں جو ہے وہ 2 سیکا جو ہے وہ اس طرح ایکسٹینڈ کرتے ہیں، اور ریکٹل سیکا جس کا جو فنکشن ہے ہمیں نہیں پتا، اور نان فنکشنل اینس۔ اب دیکھیں اینس پریزنٹ ہے لیکن نان فنکشنل ہے، یعنی کہ جو انڈائجسٹڈ ویسٹ میٹیریل ہے یہ ماؤتھ سے ہی جو ہے وہ ریلیز کرتی ہیں، اینس کا کوئی بھی فنکشن نہیں ہے ان کی باڈی میں، حالانکہ اینس پریزنٹ ہے۔
ओके, तो यहाँ पे अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो ये एबोरल व्यू है। सबसे नीचे वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये हमारे पास है एनस। एनस से पीछे जो है वो हमारे पास होगा यहाँ पे रेक्टल सेका, जो कि डायग्राम के इन्होंने शो नहीं किया हुआ है। इसके बाद आते हैं हमारे पास ये स्टमक यानी कि एबोरल, पायलोरिक स्टमक जो कि स्मॉल इन साइज़ है, और जो बड़ा वाला है वो हमारे पास है ओरल, कार्डियक स्टमक। और यहाँ पे पायलोरिक स्टमक से ही आगे जो है वो पायलोरिक सेका जो है वो निकल रही है, जो कि हर आर्म के अंदर दो दो जो है वो एक्सटेंड हो रही हैं। अब यहाँ पे डायग्राम उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया, उन्होंने यहाँ पे गुनेड्स को मेंशन कर दिया कि ये पायलोरिक स्टमक है, हालांकि ये गुनेड्स हैं, ये पायलोरिक से कम नहीं है। ओके, तो ये हो गया इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के ये जो पार्ट्स हैं एक आम के अंदर जा रहे हैं, इनको भी हम देख लेते हैं डिटेल से। ओके, ये आम के अंदर नहीं, सॉरी, सेंट्रल डिस्क के अंदर जो है, जैसा कि सबसे पहले हमारे पास आ रहा है माउथ, इसके बाद माउथ के बाद है ओरल स्टमक बड़े वाला, इसके बाद एबोरल पायलोरिक स्टमक, और पायलोरिक स्टमक से ही आगे जो है वो पायलोरिक सेकम जो है वो हर आम में जो है वो दो दो जा रहे हैं। और इसके बाद आता है रेक्टल सेकम जो कि अननोन फंक्शन है जिसका, और एनस जो कि नॉन फंक्शनल है हमारे पास। अब आगे देखते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग ऑफ बायोवाल्व शेल। तो बायोवाल्व, अब बायोवाल्व पे भी ये फीड कर सकते हैं, लेकिन बायोवाल्व का जैसे हमने पढ़ा है कि बायोवाल्व का जो शेल होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एडक्टर मसल्स उस शेल को ओपन नहीं होने देते। तो हमें पता है कि बायोवाल्व जो होती है अगर उसकी शेप बनाए तो कुछ इस तरह की शेप का जो होता है वो उसका शेल होता है। तो अब इसने कैसे ओपन करना है वाल्व्स को, ऑफकोर्स वाल्व्स को ओपन करेगा तभी तो अंदर वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्सपोज होगा, तो उस पर ये सी स्टार जो है वो फीड कर सकेगी। सबसे पहले तो ये बायोवाल्व के वेंट्रल मार्जिन के ऊपर अटैच होंगी, अपने आप को रैप करेंगे इसके शेल के अराउंड, और इसके यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है स्टार फिश, तो सबसे पहले ये अपने मिडल में रखेगी, यहाँ पे लेगी शेल को, अपनी सारी की सारी आर्म्स को जो है वो शेल के गिर्द रैप करेगी। और हमें पता है आर्म्स के ऊपर ऑफ कोर्स प्रेजेंट है ट्यूब फीट, तो ट्यूब फीट जो है अपनी सक्शन डिस्क को इस शेल पे अटैच करते हुए इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे दोनों को, ठीक है। और इस तरह से ये एफिशिएंटली काम करेंगे कि अगर एक ट्यूब फीट जो है वो थक चुका है काम करके, तो क्या होगा, स्टारफिश फ़ौरन से उस ट्यूब फीट को जो है वो वहाँ से हटा लेगी और फ़ौरन से दूसरे वाला ट्यूब फीट जो है उसको इंगेज कर लेगी, ठीक है। तो इस तरह जो है ये शेल को ओपन करेंगी। जैसे ही शेल सिर्फ और सिर्फ 0.1 मिलीमीटर तक ओपन होगा, तो इंक्रीज सिलोमिक प्रेशर की वजह से जो कार्डियक स्टमक है वो शेल के अंदर एवर्ट हो जाएगा। जैसे हमें पता है पीछे जो है वो कार्डियक स्टमक प्रेजेंट है, और होता भी ये सिलोमिक कैविटी के अंदर ही ज़्यादा, यानी सिलोमिक कैविटी ज़्यादातर कार्डियक स्टमक ने ही ऑक्यूपाई की होती है। तो कार्डियक स्टमक जो है वो फ़ौरन से एवर्ट होके इस शेल के अंदर चला जाएगा। अब कार्डियक स्टमक इस शेल में जाके क्या करेगा, ऑफ कोर्स वो जो है वो इंजाइम्स रिलीज़ करेगा, जिससे जो है वो शेल के अंदर ही ऑर्गेनिज्म की डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे डाइजेशन स्टार्ट होगी, एडक्टर मसल जो है वो वीक होंगे और शेल जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो हमारे पास ओपन हो जाएगा। जब शेल ओपन हो जाएगा तो जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, जो पहले ही शेल के अंदर कुछ ना कुछ डाइजेशन हो चुकी है, वो जाएगी फिर नेक्स्ट हमारे पास पायलोरिक स्टमक के अंदर, और नेक्स्ट फिर पायलोरिक सेकी के अंदर, जहाँ पे इसकी फर्दर जो डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट एंड न्यूट्रेंट्स को। तो वेस्ट और न्यूट्रेंट जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है या कैसे बॉडी से आउट होता है, तो ज़्यादातर ये डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है, जो कि सिलोम में क्या करेगा, सबसे पहले तो जो वेस्ट न्यूट्रेंट्स वगैरह गैसेस वगैरह सारी के सारी डिफ्यूजन के थ्रू सिलोम के अंदर जाएंगी, और सिलिएटेड सेल्स भी जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हुए सारी के सारी चीज़ों को सिलोम के अंदर लेके जाएंगे। और इसके बाद जो डर्मल ब्रेन का ही है, ट्यूब फीट है, और दूसरे जो मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स हैं उनमें जो है वो गैस एक्सचेंज में अपना रोल प्ले करेंगे, यानी उनके थ्रू जो है वो सारी की सारी गैस एक्सचेंज होगी, और जो वेस्ट एक्सचेंज है वो भी उनके थ्रू ही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेमल सिस्टम को। तो हेमल सिस्टम जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हेमल सिस्टम जो होता है वो स्ट्रैंड्स पे कंसिस्ट होता है, यानी कि ये सेंटर डिस्क पे जैसे यहाँ पे थी रिंग कैनाल, और रिंग कैनाल के साथ साथ ही हेमल सिस्टम के भी स्ट्रैंड जो थे वो टिश्यूज़ के लोकेटेड थे। इसी तरह जो था हर आर्म के अंदर भी इस तरह एक एक रेडियल कैनाल के साथ साथ हेमल सिस्टम की भी रेडियल जो कैनाल थी वो एक्सटेंड करनी थी। तो ये देख लेते हैं कि स्ट्रैंड्स ऑफ टिश्यूज जो थे वो विरिंग कैनाल के साथ साथ प्रेजेंट है एस्ट्रियाज या सी स्टार्च के केस में, जो कि एबोरल साइड पे जो है वो स्टोन कैनाल के साथ साथ भी हमें पता है रन करते हैं, और हर आर्म के अंदर भी रेडियल कैनाल के साथ साथ रन करते हैं। अगर सेंसरी रिसेप्टर्स को देखें तो जो सी स्टार्स है वो केमिकल्स, लाइट और बहुत सारे मैकेनिकल स्टिमुलाई यानी टच वगैरह को रिस्पॉन्ड करती हैं। अब इनके पास होते हैं स्पेशलाइज्ड
फोटो रिसेप्टर्स एट द टिप ऑफ देयर आर्म्स, यानी अगर सी स्टार को देखें अगर हम गौर से तो उनकी जो आर्म की टिप्स हैं उन पे जो हैं वो फोटो रिसेप्टर्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो फोटो रिसेप्टर असल में ये हैं क्या, ये असल में ट्यूब फीट ही हैं, लेकिन इनके पास कोई सक्शन डिस्क नहीं है। अगर सक्शन डिस्क नहीं है इसका मतलब है ये ट्यूब फीट फिर अपना जो फंक्शन मूवमेंट वगैरह में होता है वो तो परफॉर्म नहीं करेंगे। तो सक्शन डिस्क नहीं है ट्यूब फीट के पास, लेकिन हैं ये फोटो रिसेप्टर्स ट्यूब फीट ही की मॉडिफिकेशन। तो इनके अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ ओसिलाई, हमें पता है ओसिलस हम बोलते हैं सिंपल आई को, जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइट और डार्क में डिफ्रेंशिएट करती है। तो ओसिलाई को जो है वो पिगमेंट स्पॉट सराउंड करेंगे। तो इस तरह हमारे पास बन जाएगा फोटो रिसेप्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट को। तो रीजनरेशन में हमें पता है कि सी स्टार सबसे ज़्यादा हमें नज़र आती हैं जिनमें रीजनरेशन की एबिलिटी प्रेजेंट होती है। तो रीजनरेशन ये सी स्टार्स कर सकती हैं जहाँ तक कि अगर छोटा सा पोर्शन जो है वो सेंट्रल डिस्क का इंटैक्ट है, यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है सी स्टार, तो ये होती है सेंट्रल डिस्क, असल में इसने रीजनरेट करना है, ठीक है। अगर तो यहाँ से आर्म कट गया तो क्या होगा, सेंट्रल डिस्क जो है उस आर्म को रीजनरेट करेगी। इवन अगर फॉर एग्जांपल ऐसे हुआ है कि इतनी जो है वो आर्म कट गई है तो बाकी ऑर्गेनिज्म एक अलग अपनी दोबारा से आर्म बना लेगा और इतना जो पोर्शन है ये सेपरेट होके एक और सी स्टार जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास रीजनरेशन के थ्रू ही होती है कि हमारे पास जो है वो सेंट्रल डिस्क के दरमियान से स्प्लिट करती है और जो सी स्टार है इस तरह जो है वो दो में डिवाइड होके अपने जो मिसिंग आर्म्स होती हैं उनको दोबारा से रीजनरेट कर लेती है। अगर हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ही है डायोशियस गोनेड्स जो है वो हर आर्म के अंदर प्रेजेंट है, डायोशियस है, लेकिन एक्सटर्नली हमें ये जो है वो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस इतने ज़्यादा इनमें नज़र नहीं आते। हर आर्म के अंदर जो है अब टू गोनेड जो है वो प्रेजेंट होती हैं और जब इन्होंने रिप्रोडक्शन करनी है, जब रिप्रोडक्टिव पीरियड है तो इनकी गोनेड्स के अंदर गैमीट्स की फॉर्मेशन से जो आर्म है तकरीबन उससे बढ़ जाती है और गोनोपोर जो है वो हर आर्म के बेस पे लाई करेंगे। जैसे हमने देख लिया था पीछे ब्लू कलर में, वो गोनेड्स थे हमारे पास जो हर आर्म के अंदर थे, वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह से प्रेजेंट थे और हर आर्म की बेस के ऊपर जो है इनका गोनोपोर लाई करता, मतलब गोनोपोर इस तरह का स्ट्रक्चर जहाँ से गैमीट्स ने जो है वो बॉडी से रिलीज़ होना है। अब आगे अगर इनकी हम एम्ब्रियोलॉजी के देखें तो एम्ब्रियोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा स्टडी में डिटेल किया गया है क्योंकि स्पॉनिंग इनमें इंड्यूस करना बहुत ज़्यादा ईजी है। स्पॉनिंग मतलब कि ब्रीडिंग इंड्यूस करना या फिर मेल और फीमेल का स्पर्म्स और एग्स को रिलीज़ कर देना, ठीक है। लेकिन ये है कि इनकी स्पॉनिंग के बाद जो गैमीट्स का लाइफ टाइम है, उनका जो लाइफ टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इस वजह से जो गैमीट्स का रिलीज़ है उसको फर्टिलाइजेशन से जो है वो करस्पॉन्ड करना चाहिए, यानी कि मेल और जो फीमेल है वो एक ही टाइम में एग और स्पर्म जो है वो रिलीज़ करें ताकि आगे नेक्स्ट उनकी फर्टिलाइजेशन हो सके। अगर फीमेल ने पहले एग रिलीज़ कर दिया तो वो भी इतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकेगा, अगर मेल ने स्पर्म्स पहले रिलीज़ कर दिया तो उनका भी सर्वाइवल चांस जो है वो कम होता है। तो इस वजह से दोनों को एक ही टाइम में स्पॉन करना चाहिए ताकि आगे फर्टिलाइजेशन हो सके। आगे हम अगर एम्ब्रियोज को देखें तो एम्ब्रियोज इनके होंगे प्लांक्टोनिक, ऑफ कोर्स बाद में जो है वो लार्वा में कन्वर्ट होंगे और इनके पास होगा बैंड ऑफ सीलिया जिसको ये यूज़ करेंगे स्विमिंग के लिए। जब गैस्ट्रुलेशन होगी, गैस्ट्रुलेशन का मतलब जबकि एम्ब्रियोज के अंदर ऑर्गन की डेवलपमेंट हो जाएगी तो ये राइज करेंगे बाइपेनेरिया लार्वा को और बाइपेनेरिया लार्वा नेक्स्ट हमारे पास राइज करेगा ब्रैक्यूला लावा को और ब्रैक्यूला लावा के अंदर हमें जो है वो आर्म्स किसी हद तक जो है वो इस तरह से रूडिमेंट्री सा स्ट्रक्चर बनाती हुई नज़र आएंगी। तो जैसे हम देख सकते हैं ये हमारे पास है अर्ली बाइपेनेरिया लावा और ये हमारे पास है लेट बाइपेनेरिया लावा। अब इन लार्वा के अंदर क्या है, एनस माउथ और सीलरी बैंड जो है स्विमिंग के लिए प्रेजेंट है फिलहाल। नेक्स्ट आगे हमारे पास है ब्रैक्यूला जिसमें हमें किसी हद तक जो है वो आर्म्स का स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा है। इसने आगे कन्वर्ट हो जाना है जुवेनाइल सिस्टा, जुवेनाइल मतलब कि अभी जो इमेच्योर है। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।